Dear students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I am going to start a chapter, first chapter of the class 7 maths. And in this video, we will learn about the integer, and after that, we will discuss about the representation of integer on the number line, which we will learn in the class 6 also. Okay, now these are more important things we have to also discuss here: the mathematical operation of integer. Now, the mathematical operation we will learn here the addition, subtraction, and multiplication, and also division also. Okay, and after that we have to learn about some properties of the all the theories, all the operations. Okay, now let's start the class now. Okay, now the first question is given here. So what is an integer? So as we all know that the integer is a collection of all the numbers. Are you getting my points? Look at here, there is a definition. As we all know that the collection of all the integer are known as, just wait, the collection of all the integers like positive, negative, and the whole number included 0 also. So simply यहाँ पे कह सकते हैं collection of whole number as well as negative number is known as integer. The collection of positive numbers, negative number with included 0 is also a whole number. So simply definition आपको क्या बोलना है, इस तरीके से बोलना है यहाँ पे, the collection of positive number, negative number with included 0 is known as a integer. And now look at here, the integer is denoted by the z. इन और मैथमेटिकल ऑपरेशन हम इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं. तो ये आप लोग माइंड में सेट कर लो कि जो इंटीजर होता है वो किससे डिनोट होता है, जेड से. नाउ लेट्स सी. सो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, किसको बोलेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें, सबसे पहले जो हम लोग नंबर पढ़ते थे वो पढ़ते थे नेचुरल नंबर. एज वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्टेड बाय 1 एंड व्हेन वी स्टार्टेड बाय द 0 वी कैन से दैट नंबर इज होल नंबर. बट इंटीजर इज द बिगर पार्ट ऑफ दिस नंबर. तो सिंपली यहाँ पे कुछ ज़्यादा कलेक्शन होगा. तो इसमें क्या आ जाएगा, इंक्लूड हो गया आपके नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए. कौन से नंबर इंक्लूड हो गए, ये वाले निगेटिव नंबर आपके इंक्लूड हो गए, दिस नंबर. तो ये नंबर इंक्लूड होने के कारण होल नंबर में ये क्या बन गया आपका, टोटल जो ब्रैकेट बन गया, आप किसका बन गया कलेक्शन, ये हो गया आपका इंटीजर का. तो सिंपली इंटीजर का डेफिनेशन क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विथ इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर इज अ integer. Okay, now let's see how we have to dictate on the number line. Now look at here, there is we have to learn here how we have to dictate on the number line. Now let's see, this is the number line. Okay, and now look at here, this is the 0 here. And as we all know that the dictating the number line and the collection of the number line is here, the integer is, हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर होता है, 0 होता है, और निगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. एंड उसके बाद लोग का क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आल्सो, एंड द 0 इज आल्सो. तो लुक एट व्हेन यू डिक्टेट ऑन द नंबर लाइन, तो सिंपली हमें पता है कि जीरोस क्या होगा आपके मिड पॉइंट में होगा. और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम 0 से राइट साइड में अगर कोई नंबर डिक्टेट करते हैं तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा. और अगर हम 0 से लेफ्ट साइड की ओर अगर जाते हैं तो वो क्या होगा हमारा नेगेटिव नंबर होगा. तो एज वी ऑल नो दैट व्हेन वी डिक्टेट द नंबर, सो लुक एट हियर, वी हैव टू मेक अ लाइन लाइक दिस. ओके, नाउ लेफ्ट साइड ऑफ द 0 आल्सो at the same distance taking here. Now look at here, हो गया. Now suppose that this number is after left side, the right side of the 0 is, this number line is giving showing 1, this showing 2, and this showing 3, and this showing 4. So here is the left side of the 0 number showing here, the -1, the -2, -3 and -4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा. तो ये जो तरीका है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का, ये जो तरीका है यही आपका है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का. तो व्हेन वी मूव टू द राइट साइड ऑफ द 0, द नंबर शोइंग हियर द पॉजिटिव नंबर्स, एंड व्हेन वी शोइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द 0, द नंबर शोइंग हियर द नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट सपोज देयर इज क्वेश्चन इज राइजिंग हियर, सो डिक्टेट -5 on the -4 on the number line. So how we have to dictate here? So सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस. उसके बाद यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा. एंड वी ऑल नो दैट जो -4 होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द 0 होगा. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 यूनिट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. ओके, एंड इसके बाद हमने 4 इक्वल स्पेसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे. उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज
-4। तो ये वाले नंबर को एरो कर दोगे और दिस इज द, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये बनेगा आपका -4 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्टेट कर सकते हो नंबर को नंबर लाइन पे। नाउ लेट्स सी द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द मैथमेटिकल ऑपरेशन आई हैव टू क्लियर सम डाउट आल्सो। देखो यहाँ क्या होता है, जब भी हम लेफ्ट साइड से अगर जीरो के राइट साइड में अगर हम जाते हैं ना, तो किसी नंबर को हम अगर मान लो जोड़ते हैं, यानी हम मतलब राइट साइड में कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो तो 5 लिखा हुआ है, और उसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, अगर मान लो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स ना हमें क्या, यानी 2 यूनिट हमें क्या होगा, राइट साइड की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐड करना है, क्या यूज करना है, 2 ऐड करना है। तो 2 यूनिट हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा। तो उस केस में हम विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन ना, हम उस नंबर को यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, सपोज दैट हमें क्या ऐड करना है, व्हेन वी मूव 2 यूनिट ऑफ दी 5, तो उस केस में हमें क्या है, इसका आंसर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम 5 को डिक्टेट करेंगे, दिस 4 5, यहाँ पे 5 है, और हमें क्या बोला कि 2 यूनिट राइट साइड हमें क्या करना है, मूव करना है। तो इस केस में हम 1 यूनिट और 2 यूनिट मूव कर दिए, और ये हमारा बन गया व्हाट इज योर आंसर। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर दिस इज 5, एंड इसके बाद आता था आपका दिस इज 6, एंड ये होता था 7। तो योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ईयर 7। तो 7 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने क्या करना है, इसी तरह से हम निगेटिव साइन की तरफ भी जाएंगे तो होगा। तो निगेटिव साइन की तरफ भी अगर हम जाते हैं तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व। Okay, now let's see the another point. Suppose that when we move to the 2 से लेफ्ट साइड में हमें जाना है और -3 तक जाना है। कितने तक जाना है, -3 तक। उस केस में हमारी वैल्यूज़ कितनी बनेगी, हम कितना यूनिट हम क्या कर रहे हैं, हम क्या किए हैं वहाँ पे, आप मतलब कि उनको दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो उस केस में हमें कैसे पता करना पड़ेगा, सपोज ये 0 है और यहाँ पे हमारा 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, हमारा 2 यूनिट यहाँ पे हुआ, और हमें कितना यूनिट लेफ्ट साइड में जाना है 0 से, वो -3 यूनिट तक जाना है। ये -1 यूनिट, -2 यूनिट और -3 यूनिट, दिस इज -3। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है। तो सिंपली यहाँ पे डिफरेंस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काउंट करें, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये क्या बन गया आपका टोटल, यहाँ बना आपका डिफरेंस, यहाँ पे बनेगा आपका टोटल 5 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट की डिस्टेंस है। इस तरीके से हमने इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और राइट साइड में जाएंगे तो उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया। नाउ लेट्स सी द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विच आर अप्लाइड हियर। कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करे जाते हैं। ओके, नाउ there is a mathematical operation like addition we have to learn here. After that subtraction we have to learn also, multiplication also we have to learn, and after that division also learn. So let's see, start the first operation. The name is the mathematical, the first is addition, and we all know that the sign is here, the addition, subtraction, multiplication and division also. इन सभी साइंस को हमें देख लेना है, और उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑपरेशन के बारे में। नाउ दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट एज वी आर शोइंग इन द पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फर्स्ट इंटीजर के रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है एडिशन के केस में, यदि सम ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ध्यान से देखना इस रूल्स को, क्योंकि ये रूल ही आप लोगों को लर्न कराएगा और ये अंडरस्टैंडिंग कराएगा कि हमें इंटीजर्स को कैसे फॉलोअप करना है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर दो इंटीजर जो कि पॉजिटिव होंगे, उनकी जो ऐड करने पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखो यहाँ पे एक इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, दिस इज द फर्स्ट इंटीजर, दिस इज द सेकंड इंटीजर, व्हेन यू ऐड दिस नंबर एंड यू विल गेट हियर द थर्ड इंटीजर, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच आर आल्सो कम इन पॉजिटिव साइन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, द रूल नंबर फर्स्ट क्या बोला कि व्हेन द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड देन वी विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो सम बनेगा उसका क्या बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द अनदर रूल। Now other rule is here, the sum of 2 negative integers is always a negative। तो ध्यान से देखना, अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ना और उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उस केस में हमारी वैल्यूज़ क्या बनेगी, वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव। तो वैल्यू कैसी आएगी आपकी, निगेटिव आएगी। लेट्स सी द एग्जांपल इज हियर, व्हेन यू ऐड -5 with -1 then what will come।
सो हमने पहले भी बोला जब दो सम ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ निगेटिव, यहाँ पे सम ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ निगेटिव, यानी दो नेगेटिव इंटीजर्स के जो सम बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑलवेज क्या होंगे, निगेटिव साइन कैरी करेंगे। यहाँ पे देखो -5 है और ये -1 है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -6 बनेगी। नाउ लुक एट इट, इसको कैसे सॉल्व किया गया ये भी ध्यान से देख लो, अगर इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला कुछ ना स्पेशल केसेज हैं उसको आप लोग नोट कर लो यहाँ पे। नाउ व्हेन विल कम हियर द प्लस एंड माइनस साइन, देन एडिंग के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे दो केसेज बनेंगे, एडिंग का केस बनेगा और आपका क्या बनेगा, एडिंग के बाद बनेगा दूसरा केस बनेगा मल्टीप्लिकेशन की केस, यानी दो केसेज बनते हैं। पहले हम एडिंग के केस को बात करते हैं। तो अगर हम प्लस माइनस की बात करते हैं तो उस केस में जो आंसर बनेगा, वो जो केसेज लगेगा, ऑपरेशन होगा, वो यहाँ पे माइनस वाला ऑपरेशन लगेगा। दूसरा पॉइंट, अगर वो क्या होगा, माइनस प्लस होगा तो उस केस में भी क्या लगेगा, सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि प्लस प्लस होगा तो उस केस में क्या होगा, प्लस वाला साइन लगेगा यहाँ पे। और अगर मान लो माइनस माइनस होगा ना, तो उस केस में भी क्या होगा, एडिशन वाला ही फॉर्मेट लगेगा यहाँ पे, यानी ऑपरेशन ही होगा यहाँ पे। तो इन दोनों केसेस में हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट वाले रूल में क्या था कि आपका था कि +5 था और +1 था, तो उस केस में क्या आंसर आता था, 6 आता था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड करा था ना। लेकिन अगर बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर्स क्या है, निगेटिव है, तो हमने बोला फिर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड तो ज़रूर करेंगे लेकिन उसका आंसर ने रिजल्ट क्या बनेगा, वो रिजल्ट ऑलवेज कैसा होगा, वो रिजल्ट निगेटिव होगा। और जब दोनों साइन पॉजिटिव होंगे तो उनके रिजल्ट क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। सो लेट्स सी द अनदर पॉइंट, रूल नंबर थर्ड is here, when the sum of the positive and a negative number, the integer could be a positive, could be a negative, और मे बी द जीरो आल्सो। यानी ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखें, क्योंकि हमने ये फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट था वो इसी से रिलेटेड था। इसको हमने देखा था कि जब किसी दो नंबर को, जो कि एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तो उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो या तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो वो निगेटिव होगा, या तो वो जीरो होगा। ये सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी उसके फॉर्मेट के ऊपर। अब ये देखते हैं एग्जांपल के रूप में कैसे। नाउ लेट्स सी द हियर दिस एग्जांपल। नाउ व्हेन यू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, यू आर रियली सब्सट्रैक्टिंग देन। ओके, हमने पहले बोला था कि आपको अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं तो आपने क्या, हमने बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स अगर होंगे तो उसको ऐड तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐड के केस में वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट जो होगा उसके बाद जो भी साइन आएगी ना, वो डिपेंड करेगा उसके ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू पे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू पे। सो लुक एट हियर, ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, अब इसको देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखो, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ in this first example, when you add a positive integer, this is the positive integer and another integer is here, this is the negative integer। इन दोनों के बीच में क्या लगा, ऐड का साइन लगाया है, यानी हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं। किसका ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो इस केस में अगर जब एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं तो इस केस में हमारा वो, हमने बोला कि जब दो डिफरेंट साइन के नंबर्स को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। वो ऑलवेज उल्टा होकर के सब्सट्रैक्ट बन जाता है। तो हमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो आंसर वाली जो साइन होगी वो डिपेंड करेगी ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बिगर वैल्यूज़ है यहाँ पे 5 है और स्मॉलर वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो इस केस में हमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट के केस में क्या बनता है, 5 - 1 = होता है हमारा 4। तो अब जो आंसर आएगा वो की साइन कैसी रखेगी, तो साइन यहाँ पे क्या है, तो बिगर वैल्यू का जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव साइन है। तो इस केस में ये आंसर तो एक्चुअली रॉन्ग है। ध्यान से देखो, ये आंसर क्या आपका, ये आंसर आपका रॉन्ग है, ये आपका आंसर रॉन्ग है। आंसर आपका क्या बनेगा, 4 से। वाई 4? बिकॉज द जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है, इसलिए इसके आगे क्या होगा, पॉजिटिव साइन कैरी करेगा। इस केस में +4 होगा, नॉट कि -4। एंड यू नो दैट +4 को हम +4 लिखते नहीं हैं, हम लोग उसको ऑलवेज 4 ही लिखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट। नाउ द सेकेंड केस में देखो ध्यान से क्या होता है। इन सेकेंड केस व्हाट विल हैपन, व्हेन द बिगर वैल्यू इज हैविंग नेगेटिव साइन एंड द स्मॉलर वैल्यू हैविंग
पॉजिटिव साइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो हमने पहले भी बोला कि जब हम अगर एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर होगा तो उनमें एडिंग का केस तो हम लगा रहे हैं, लेकिन वो ऑलवेज क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ऐड होता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर तो ऑलवेज क्या होगा, रियली में वो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो रियली में सब्सट्रैक्ट होता है, हमें सब्सट्रैक्ट करना ही है, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपली बिगर वैल्यू क्या है, 5 है, स्मॉलर वैल्यू क्या है, 1 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा, 4 बनेगा। हमने 4 लिख दिया, बट नाउ यू कैन सी दैट दिस 4 इज करेक्ट और नॉट। सो लुक एट हियर, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ दी ग्रेटेस्ट वैल्यू। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, साइन ऑफ दी ग्रेटेस्ट वैल्यू पे। तो अब ये बताओ साइन ऑफ दी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, क्या है, माइनस है या प्लस है। तो साइन ऑफ द वी कैन सी है द साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज हियर माइनस। तो अब ये बताओ जो प्रोडक्ट की साइन, जो फाइनल आंसर है उसकी साइन क्या बनेगी, तो उसके आगे भी क्या लगेगा, साइन लगेगा जो ग्रेटर साइन है, ग्रेटर वैल्यू की साइन है। तो ग्रेटर वैल्यू की साइन तो माइनस थी, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा -4। नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इसका आंसर क्या बनेगा, -4 बनेगा। नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट, when the two values have, sorry, when the operation when the two values having the same sign, and if you get sorry, यहाँ पे अगर दो वैल्यूज़ को हम लेते हैं और दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू जो क्या है सेम है, बट साइन क्या है आपके डिफरेंट है, यानी एक क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है पॉजिटिव साइन, और दूसरा क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है आपका निगेटिव साइन कैरी कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, और वैल्यूज़ दोनों के सेम है, तो उस केस में आंसर क्या बन जाएगा आपका, 0 बनेगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल इज हियर। नाउ द एग्जांपल इज हियर द व्हेन यू ऐड 5 प्लस -5, यानी इस केस में क्या होता है, यानी एक वैल्यू क्या है, पहली वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन कैरी कर रही है, ओके, एंड दूसरी वाली वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, निगेटिव साइन कैरी कर रही है। तो इन दोनों के केस में अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है आपका, ये दोनों के केस में ऐड करने पे ये बनता है आपका, वैल्यूज़ क्या बनती है इसकी, 0 बन जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको साइन को चेंज करते हैं और इसके रिजल्ट को शो करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट, लेट्स प्रैक्टिस हियर विथ ऑल द सिनेरियो। जो हमने अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस करते हैं। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों के दोनों साइन क्या हो, पॉजिटिव हो और उसको ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो सिंपली हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे इसकी आंसर आएगी 11। जब दोनों के दोनों वैल्यूज़ क्या हो, सेम साइन रखे हो लेकिन निगेटिव साइन हो, तो आंसर क्या होगा, हमने पहले बोला था आंसर उसका निगेटिव में आएगा, तो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो पहले इसको ऐड कर लो, तो 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है, और साइन इसका क्या बनेगा आपका, माइनस। ओके, नाउ लुक एट हियर, इस वाले से थर्ड केस में क्या है, जब दो नंबर ना दोनों को ऐड करने पे, यानी एक आपका नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर आपका निगेटिव, और वो दोनों नंबर को ऐड करना है, तो उस केस में हम साइन किसकी लेंगे, बड़े वाले वैल्यू की साइन लेंगे। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो उसकी साइन कितनी है, माइनस है। तो इतना तो श्योर है कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, बट होगा क्या यहाँ पे, तो एक और बात हम जानते हैं कि जब दो वैल्यूज डिफरेंट साइन के होंगे तो वो क्या होगा, ऐड तो होता ही है, बट ऐड के केस में रियली में वो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का पार्ट बन जाता है। ओके, नाउ लुक एट हियर, अब ये बताओ 6 बड़ा है 5 आपका छोटा है, तो इसके इसमें 6 और -5 करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। अब बताओ ये 1 के साथ साइन कौन सी लगेगी, तो माइन हमने बोला था साइन डिपेंड करेगा उसके ऊपर जो बिगर वैल्यूज़ होगी, तो बिगर वैल्यू यहाँ पे 6 है तो उसकी साइन माइनस है, तो इसलिए आंसर भी क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। नाउ द फोर्थ इज आल्सो एडिशन का पार्ट है, बट ये भी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, बिकॉज वन वैल्यू इज हियर पॉजिटिव एंड अनदर वैल्यू इज हैविंग निगेटिव वैल्यूज। सो इस केस में भी हमारा सेम थिंग आएगा, अप्लाई होगा, यहाँ पे भी हमारा वही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो वैन यू ऐड 8 प्लस -7 देन व्हाट विल कम हियर। सो हमने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे भी आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू तो 8 - 7 पे क्या आती है, 1 आती है, तो हम 1 तो लिख लेंगे, बट इज दिस वैल्यू इज करेक्ट। सो आई एम सेइंग हियर, इसको हम डिपेंड करेंगे कि जो साइन बनेगा वो साइन हमारे ग्रेटर वैल्यू की ओर जाता है, तो ग्रेटर वैल्यू की जो साइन है वो क्या है, तो ग्रेटर वैल्यू की जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में इसके ऊपर कोई साइन नहीं लगेगा, वो आपका आंसर करेक्ट है। आई थिंक ये वाला जो आंसर है इसका वो करेक्ट है। नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में हमने बोला था आपको, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी इसकी दी थी, उसमें दिया था आपका कि जब दो नंबर सेम हो और उसके साइन क्या हो, अपोजिट हो, और वो दोनों को ऐड करते हैं, तो उस केस में वैल्यूज़ क्या बनेंगी, तो वैल्यूज़ उसका क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। When the two value having the different sign but magnitude is 0,
then the addition of that number is, addition of those number is 0. Okay, so I hope you have understand how we have to add. And in my if you have any confusion, then comment me in the comment box. Okay, and bye bye dear students. In my next topic we will discuss about the mathematical operation of subtraction. Okay.